Hey students, welcome back. In this video, we'll be completing the last module, that is ought to, and previous modules were can, could, may, might, will, would, shall, should. Okay, now must अपन ने can, could के अंदर भी देखा, अपन अब ought to के अंदर भी must देखेंगे. So now ought to. Ought to, you can say, is a semi-modal, okay, or modal. Okay, you can pronounce it as modal or modal both. So ought to is a semi-modal, and you can say it is used as also main verbs. What is the meaning of ought to? Ought to, you can say in Hindi, करना चाहिए. अब how we use this modal in sentences, how it will help the speaker to express the mood, or you can say the attitude. Let's see. First point, ought to conveys that it would be the right thing to do with a greater sense of responsibility and as a moral duty. सो ought to क्या कन्वे करता है, मीन्स अपन अगर पढ़ेंगे यहाँ सेंटेंस के अंदर ought to लिखा होगा, वो क्या बताएगा, कन्वे मीन्स क्या बताएगा, दैट इट्स समथिंग विच इज़ रिटन और विच इज स्पीकर इज स्पीकिंग इज राइट थिंग टू डू. यू कैन से एडवाइस, जो राइट थिंग है आप उसके ऊपर स्लैश कर सकते हो, एडवाइस लिख कह सकते हो उसको, और यू कैन से इवन स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन. राइट थिंग, जैसे कि अगर मैं आपको राइट थिंग्स में अपन क्या कहेंगे, आई विल से कीप क्वाइट व्हेन यू आर इन क्लास. तो ये क्या है, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, स्ट्रिक्टली कोई चीज़ को बताना, और कौन सी चीज़ जो कि करेक्ट है, राइट है. सो ought to एक ये बताता है, एंड it also tells something that have greater sense of responsibility or moral duty. Means in short you can say it will also convey a thing which is very important and urgent. Moral duty, duty means what do you understand by duty, कि वो आपको रोज करनी ही है, या जिस टाइम पे आपकी ड्यूटी असाइंड है तो वो आपको करना ही पड़ता है. सो ought to conveys right thing with, you can say, like advice or strict recommendation. Secondly, it will also tell us important and urgent things or as a moral duty. Let's take example. You ought to look after your grandparents. ought to means करना चाहिए, कि तुमको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए. You ought to pay the taxes on the time. तो ये एडवाइस हो गई, या फिर अगेन किसी को रेकमेंड करना कि तुमको अपने टैक्स टाइम पे करने चाहिए. ought to also suggest, from here you can make a star over here and even here. I'll explain you. ought to also suggest that it is the right thing to do. Nowadays, both should and ought to are used to convey the same idea. Means should भी use हो सकता है ought to की जगह. Means ought to तो अपन को पढ़ते सार पता चल जाएगा कि it is telling something right thing. Okay, or you can say moral duty, but we can use the modal should in case of ought to. ought to की जगह should भी use कर सकते हैं to convey the same idea, same meaning, okay, or same duty. Now here it is mentioned in the pink word necessity, compulsion. Means ought to क्या बताता है, necessity and compulsion. किन words के through, means ought to की जगह जैसे अपन ने देखा should लगा सकते हैं. Similarly अपन ought to की जगह must, have to, have got to, had to and had got to, ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको भी अपन यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ ought to. These all word underlined, you can underline also.
these underlined word tell us the or speakers tells the necessity and compulsion with the help of these word. Now we have example of all these word, but before reading these example, it is very important to understand how, when we use must, when we will using have to, when we will use had to, had got to. जितने भी ये वर्ड्स हैं इनके साथ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मीन्स रूल्स होते हैं कि मस्ट कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, हैड टू कहाँ लगेगा, हैड गॉट टू कहाँ लगेगा. लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू. कि आप अगर मैं कहूँ मस्ट एंड हैव टू तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, कंपल्शन. अगर मैं कोई कंपल्सरी चीज़ या एक रूल बता रही हूँ जो सबको फॉलो करना है तो मैं कहती हूँ यू मस्ट फॉलो द रूल. ओके, यू हैव टू फॉलो द रूल. सो मीनिंग इज सेम, बट आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन यू विल बी यूजिंग मस्ट एंड व्हेन विल बी यूजिंग हैव टू. सो लेट्स रीड फ्रॉम हियर. Must and have to are both used to express an obligation, responsibility and necessity. Obligation again you can say advice. ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग ही होगा अगर आप यूज़ करोगे. While must can be generally replaced by have to in the present tense. This is important कि अब must कहाँ replace होगा have to से, प्रेजेंट टेंस में. अगर कोई सेंटेंस कोई प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, या इफ़ आई वॉन्ट टू टेल यू सम एक्शन अबाउट प्रेजेंट, देन आई यूज़ हैव टू. लेट्स कंटिन्यू. हैव टू इज़ इन द प्रेजेंट टेंस. देयर इज समटाइम्स स्लाइट डिफरेंस इन द मीनिंग और यूज़. स्लाइट मीन्स थोड़ा सा. जब आप इनको यूज़ करो सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा मीनिंग में या सेंटेंस में, या आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो इन वर्ड्स को, मस्ट और हैव टू को. लेट्स सी एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम हियर. आई मस्ट राइट अ लेटर टू जॉन. वी जनरली यूज़ must when the speaker decides that something is necessary or needs to be done. मीन्स मस्ट कब यूज़ होगा कि जब मैं किसी को अपनी इन जनरल वे में, मीन्स अगर कोई मुझसे बात कर रहा है या अगर मैं सोच रही हूँ तो ये सिर्फ एक जनरल वे है कि हाँ मुझे एक लेटर लिखना चाहिए जॉन को. नाउ इन दिस केस आई हैव डिसाइडेड that I need to write a letter to John. Nobody else has told me to write it. I think it is necessary. Now another example, have to. अब यहाँ पे क्या है, पहले मैं सिर्फ सोच रही थी कि मेरे को या मुझे पता है कि एक लेटर लिखने की नीड है, बट नाउ व्हेन आई हैव डिसाइडेड मीन्स अब मैंने प्रेजेंट में डिसाइड कर लिया कि मुझे लेटर लिखना है, then I will use have to. Let's see from here. I have to write a letter to John. We use have to when somebody else other than the speaker has made the decision. Means have to भी कब आ जाएगा, जब स्पीकर के अलावा कोई और डिसीजन ले रहा है तब भी have to आएगा. Okay, so let's see how. So here I didn't receive a letter, I didn't decide to write a letter, somebody else has told me to write it, somebody else told me it was necessary to do. अब यहाँ पे कौन सा केस बता रहे हैं, पहले मुझे क्या सेल्फ रियलाइजेशन था, मुझे पता था कि मुझे लेटर लिखना है. अब जब अपन को कोई और ये एडवाइस करता है या यू कैन से ऑब्लिगेशन देता है कि आपको ये लेटर लिखना ज़रूरी है, देन हाउ वी यूज़ दिस वर्ड मस्ट एंड हैव टू. लेट्स सी. Let's look at some more example. I must book a hotel for my trip next week. Here I am reminding. Here means this word here ये किसको रेफर कर रहा है, इस एग्जाम्पल में. Here means इस एग्जाम्पल में I am reminding myself
that it is necessary to do. I have decided that it is necessary. Now here जो फर्स्ट एग्जाम्पल था बुक का होटल, तो इधर क्या है, मैं अपने आप को रिमाइंड करवा रही हूँ. रिमाइंड मीन्स याद कराना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म एट वर्क. आवर बॉस मेक्स अस wear uniform. It can be it is an obligation that our boss has decided that it is necessary. फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, मुझे पता है कि टिकट बुक करना या होटल बुक करना नेसेसरी है, बट इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बॉस ने ऑब्लिगेशन दिया है कि यूनिफॉर्म पहनना नेसेसरी है. कोई और बता रहा है कि कोई चीज़ नेसेसरी है. आई द स्पीकर एम नॉट मेकिंग दिस ऑब्लिगेशन, समवन एल्स इज. तो यहाँ पे लास्ट लाइन ये ही कह रही है कि ये वाला जो ऑब्लिगेशन है ये क्या है, किसी और ने बताया है कि ये नेसेसरी है, मेरे को नहीं पता था, ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन नहीं था. कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. The teacher says you must complete the essay by Friday. The student says we have to complete the essay by Friday. तो मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो essay का completion है it should be done on by Friday. But in this first example here यहाँ पे टीचर ऑब्लिगेशन दे रहा है या टीचर एक ऐसी एडवाइस दे रहा है या स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन कर रहा है कि आपका ऐसे कंप्लीट होना चाहिए. ओके, सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट ने अपने आप रियलाइज़ करा है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी और इट इज़ अ ड्यूटी टू कंप्लीट द ऐसे बाय फ्राइडे. नाउ मस्ट इन डिफरेंट टेंसेस. अब आप देखोगे कि पहले अपन ने क्या करा, हैव टू. अब अपन पढ़ेंगे हैड टू. नाउ यू कैन हियर आई विल राइट इट. नाउ अब अपन है मस्ट और वर्सेस हैड टू. ओके, लेट्स स्टार्ट. मस्ट इज ओनली यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस and sometimes to express the future we use the form have to for the other tenses. and now first क्या था, अपन ने must क्या है, इसको आप एज अ मेन वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं. एंड कुछ प्रेजेंट टेंस के बारे में बताना है तो कर सकते हैं, एंड बहुत रेयर केसेस में फ्यूचर के बारे में. अब अपन करेंगे हैड टू कि अगर मुझे कोई चीज़ पास्ट की रिमाइंड करनी है या पास्ट की एडवाइस देनी है या अगेन पास्ट में मैंने कोई स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन दिया अगेन, या पास्ट में कोई मेरी मॉरल ड्यूटी या एनीथिंग विच वाज अर्जेंट कुछ हुआ है या कुछ बता रही हूँ ऑफ पास्ट, देन आई यूज़ हैड टू. लेट्स सी एग्जाम्पल. द पास्ट टेंस ऑफ मस्ट इज हैड टू. ये आप अपनी इधर बुक में भी कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो. द पास्ट टेंस ऑफ मस्ट इज हैड टू. आई हैड टू पे माई स्पीडिंग टिकट्स yesterday. She had to give a presentation to her boss. So it is of all past tense. Now future tense. The future tense of must is will have to. I will have to leave work early tomorrow. तो ये फ्यूचर आने वाले टाइम के बारे में अगर कुछ स्पीकर बता रहा है तो मैं मस्ट की जगह विल हैव टू ये मैं यूज़ करूँगी. पास्ट में हैड टू, फ्यूचर टेंस में विल हैव टू. नेक्स्ट एग्जाम्पल. इन स्पोकन इंग्लिश वी वुड यूज़ द contraction of I'll instead of I will. I'll have to leave. So this line means कि कभी अगर I will लिखा होता है तो अपन उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं या उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है I will का I'll. Here I double L. तो ये है, अगर I will की जगह आप I'll लिखोगे वो भी सही है. However, sometimes must is also used to express
फ्यूचर ऑब्लिगेशन, जैसे अपन ने देखा प्रेजेंट के बारे में बताते हैं, बट फ्यूचर में भी कैसे यूज़ होता है मस्ट। फ्यूचर में अपन ने देखा है विल हैव टू, ठीक है, बट इन सम सेंटेंसेस मस्ट भी यूज़ हो सकता है रादर देन विल हैव टू की तरह। लेट्स सी, आई मस्ट लीव वर्क अर्ली टुमारो। नाउ दो द वर्जन विद द विल हैव टू इज़ टू मच मोर कॉमन, तो अगर मैं विल हैव टू भी लगा दूंगी तो वो भी सही है। आई विल हैव टू लीव वर्क अर्ली टुमारो, मुझे कल काम से जल्दी निकलना होगा। और अगर मैं मस्ट लगा रही हूँ, आई मस्ट लीव वर्क टुमारो, सो इट इज़ यू कैन से मॉडर्न इंग्लिश। अगर अपन मस्ट का यूज़ कर रहे हैं, बोथ आर करेक्ट, विल हैव टू भी सही है इस एग्जाम्पल के साथ एंड मस्ट भी सही है इस एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट, हैव टू वर्सेस हैव गॉट टू। अब अपन ने देखना है हैव गॉट टू एंड हैव टू एंड हैव गॉट टू ये कब यूज़ करते हैं एंड ये सब कैसे अपन यूज़ करें इन केस ऑफ मस्ट, कि मस्ट की जगह ये वाले वर्ड्स भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन इनफॉर्मल इंग्लिश हैव गॉट टू इज समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ हैव टू। इनफॉर्मल इंग्लिश मीन्स when you are speaking or writing informally, मीन्स आप अगर कुछ बोल रहे हो या लिख रहे हो कहाँ पे, इन इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल किसको कह सकते हैं? when you are talking to your friends, when you are talking to your family members, when you are talking to your neighbors, so it is informal, or when you are talking in your community या किसी भी ग्रुप में। बट फॉर्मल कब होता है? जब आप किसी ऑफिसेज में, स्कूल्स में, या कोई अगर आपकी यू कैन से मीटिंग हो रही है, सो दीज ऑल थिंग्स आर फॉर्मल, तब अपन हैव टू का यूज़ करेंगे एंड हैव गॉट टू का कब यूज़ करेंगे? इनफॉर्मल में। लेट्स सी एग्जाम्पल, नोट दैट द सब्जेक्ट एंड हैव हैज़ आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर गॉट टू इन द स्पोकन इंग्लिश, कि जब अपन लिखते हैं तब अपन हैव टू हैव गॉट टू लिख देते हैं, बट जब अपन बोलते हैं तब अपन गॉट टू का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेट्स सी एग्जाम्पल, आई गॉट टू इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई हैव गॉट टू, मीन्स शॉर्ट फॉर्म, कि मैंने HAVE की जगह सिर्फ VE यूज़ करा है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा है, बट ये क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। लेट्स सी, विच इज़ सेम एज आई हैव टू, तो आई हैव टू, आई हैव गॉट टू की जगह आप ये शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हो इन इनफॉर्मल, व्हेन यू आर राइटिंग और स्पीकिंग इन इनफॉर्मल वे। He got to is the contraction of he has got to, which is the same as he has to. Let's look at the three ways of saying the same thing. अब एक ही चीज़ को मैं I got to, I and I have to, okay, I अपन हटा देते हैं, have to and have got to एंड उसका कॉन्ट्रैक्शन हैव टू का, ये तीनों को कैसे यूज़ करेंगे बट मीनिंग सेम होगा। लेट्स सी फ्रॉम हियर, आई हैव गॉट टू टाइडी माई रूम बिफोर आई कैन गो आउट। आई हैव गॉट टू टाइडी माई रूम बिफोर आई कैन गो आउट। आई हैव टू टाइडी माई रूम बिफोर आई कैन गो आउट, मीन्स मुझे अपना रूम साफ करना है कब? मेरे बाहर जाने से पहले। तो मीनिंग तीनों का यही है, बट मैंने आईव गॉट टू और आईव, जो इसको है आप इसको प्रोनाउंस करोगे आईव गॉट टू, और इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? आई हैव गॉट टू, और इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? आई हैव टू। तो मैंने इसको जो एच का साउंड है इस फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो वो साइलेंट हो जाता है। Okay, now again these are more example of have to and have got to. You can read it. Now we'll be taking examples from your book. तो जो उसका मीनिंग है अपन ने अब देख लिया, हैव टू, हैड टू,
हैड टू कब यूज़ होगा, पास्ट टेंस में होगा, मस्ट कब प्रेजेंट टेंस में, या प्रेजेंट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन प्रेजेंट तब मस्ट यूज़ होगा. नाउ थर्ड पॉइंट फ्रॉम योर बुक, वी यूज़ हैव टू एंड मस्ट to say that is necessary to do something. Sometimes we can use either of them. Means मैं इन दोनों का, लास्ट लाइन क्या है, दोनों का यूज़ कर सकती हूँ कभी कभार, बट when the meaning is not changed. and when I am using have to and must, जब कोई चीज़ मुझे अगर बतानी है कि ये नेसेसरी है, मीन्स ये इम्पॉर्टेंट है ये काम करने के लिए, तब मैं हैव टू या मस्ट का यूज़ करूँगी. जैसे मैंने आपको कहा यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. यू मस्ट स्टडी सिंसियरली इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स. तो ये क्या है, बहुत नेसेसरी है कि अगर आप स्टडी सिंसियरली करोगे तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू स्टडी सिंसियरली इफ़ यू वांट टू डू वेल. सो बोथ द मीनिंग आर सेम. समटाइम्स सेंटेंस चेंज हो जाता है, ये थोड़ा सा यूज़ अब जब मॉडल्स का करते हैं तब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इन योर सेंटेंसेस. फोर्थ पॉइंट, हैव टू. हैव टू इज़ यूज टू सजेस्ट सम काइंड ऑफ कंपल्शन. सो यू कैन मार्क हेयर, अगर किसी चीज़ की कंपल्सरी, कोई चीज़ कंपल्सरी होता है या कुछ रूल होता है तब अपन हैव टू लगाएंगे. और जब अपन सोचें कि अगर कोई ड्यूटी है या कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग है या विच इज़ समथिंग वेरी नेसेसरी, तब अपन मस्ट या हैव टू का यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स रीड दिस फोर्थ पॉइंट अगेन. हैव टू इज़ यूज टू सजेस्ट सम काइंड ऑफ कंपल्शन और देयर इज सम रूल विच हैज़ टू बी फॉलोड और द सिचुएशन रिक्वायर्स इट. नाउ हमेशा यहाँ रूल या कुछ कंपल्शन की बात नहीं होती. अगर कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भी अगर कुछ करना इम्पॉर्टेंट है तब भी अपन हैव टू लगाएंगे. ओके, इफ़ आई से कि इस रूम में अगर फायर लग जाइए तब मैं क्या करूँगी, आई हैव टू थ्रो सम वाटर. ओके, दैट सिचुएशन रिक्वायर्स एक्शन, उस एक्शन के साथ मैं हैव टू यूज़ करूँगी. लेट्स टेक एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. वी हैव टू सिंग वेन वी एंटर द स्कूल. तो ये कंपल्सरी चीज़ है कि जब आप स्कूल में एंटर करते हो आपको ये गाना गाना है. यू मस्ट स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रेन. सो अगेन इट इज़ अ कंपल्शन. फिफ्थ पॉइंट, मस्ट डजेंट हैव पास्ट टेंस फॉर्म, सो वी कैन यूज़ मस्ट टू टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो दिस मीन्स जो मस्ट है इसका कोई फॉर्म नहीं है. जैसे इन अपन ने वर्ब्स में फॉर्म पढ़ी थी, डू, डिड, डज या डू, डज, डिड, तो ये सब फॉर्म थी. तो मस्ट की कोई फॉर्म नहीं है. जैसे हिट, अपन ने हिट की पढ़ी थी, तो हिट अगर मैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में भी यूज़ करूँगी तो वो वर्ड हिट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. एंड अगर मैं जैसे ब्रेक की बात करूँगी तो मैं कहूँगी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ठीक है, तो इसके फॉर्म्स चेंज हैं, बट जो मस्ट है, जितने भी ये पॉइंट्स हैं 1 to 7, ओके, आप हर किसी के आगे स्टार बना सकते हो क्योंकि दीज आर द रूल्स. ये आपको याद रखने होंगे व्हेन यू आर राइटिंग और फाइंडिंग द मॉडल्स. नाउ लेट्स रीड फिफ्थ पॉइंट. मस्ट डजेंट हैव पास्ट टेंस फॉर्म, वी यूज मस्ट टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो मस्ट क्या होगा, प्रेजेंट और जनरली ज़्यादातर सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात अगर अपन बता रहे हैं या लिख रहे हैं तब अपन मस्ट यूज़ करेंगे. लेट्स सी एग्जाम्पल. वी मस्ट अटेंड द मीटिंग नाउ. तो ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो गई. वी मस्ट अटेंड द मीटिंग टुमारो. तो ये जो कल होने वाली मीटिंग है उसके बारे में बता रहे हैं. सिक्स्थ पॉइंट, बट वी कैनॉट यूज़ हैव टू इन ऑल द टेंसेस. ये जो अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पढ़ा हैव टू, ये अपन हर टेंसेस में मीन्स यू कैन से फ्यूचर टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, यू कैन से प्रेजेंट में कर सकते हैं एंड पास्ट में कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. आई हैव टू बाय मेडिसिन्स फ्रॉम द मेडिकल शॉप.
तो ये क्या हो गई, नेसेसिटी, मीन्स कुछ चीज़ बहुत नेसेसरी है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैड टू बाय मेडिसिन फ्रॉम द मेडिकल शॉप. अगेन हैड टू मीन्स पास्ट के बारे में, अगर मैं आपको पास्ट के बारे में बता रही हूँ तो मैं हैड टू का यूज़ करूँगी. नाउ लेट्स टेक लास्ट पॉइंट, 7th, इन क्वेश्चंस एंड द नेगेटिव सेंटेंसेस. क्वेश्चन मीन अगेन WH क्वेश्चंस एंड जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जब अपन यू कैन से किसी पे रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट ऑफर, तब भी अपन ने क्वेश्चन मार्क का यूज़ देखा है. जैसे कि इफ़ आई से व्हेन शैल वी मीट अगेन, तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया विदाउट ओके, इसमें मैंने व्हेन का यूज़ कर लिया. अगर मैं सिर्फ शैल मॉडल का यूज़ करूँगी, शैल आई गो होम, तो इसमें क्या हुआ, मैं उनसे परमिशन मांग रही हूँ. ओके, एंड विद द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप कोई क्वेश्चन वर्ड्स नहीं देखोगे, वो व्हाट, व्हाई, व्हेन, होम, ये नहीं देखोगे. ओके, सिमिलरली यहाँ पे अपन जब क्वेश्चंस पुटअप करते हैं या कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तब अपन डू की फॉर्म यूज़ करते हैं हेयर. तो डू की फॉर्म क्या है, डू, डज, डिड. ओके, वील बी यूजिंग दीज डू की फॉर्म in asking the question or in writing the negative sentences. Let's see example, do you have to work till late every day. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया कि क्या तुम्हें को लेट काम करना पड़ता है. एंड इसमें अगेन अपन प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट थिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने हैव टू यूज़ करा है. सेकेंड एग्जाम्पल, डिड द स्टूडेंट्स हैव टू कैरी देयर ID कार्ड्स. तो अगेन विद द हेल्प ऑफ डू एंड डिड मैंने हैव टू का यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन पुटअप करा है. सो वी एंड दिस टॉपिक हेयर. सो बाय दिस वी completed our chapter number 9 models. I hope you understood well. Thank you so much for listening. Be safe, keep learning.